ਹੈਲੋ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਔਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਲਟ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ। ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਹੈ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਲਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਫ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀ ਐਕਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਕਸ ਹੈ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਜਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਵਾਈ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੀ ਵਾਈ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਡੀ ਵਾਈ ਉਹੀ ਡੀ ਐਕਸ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਡੀ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਪਲੱਸ 1 ਆਪਨ ਐਨ ਪਲੱਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਐਕਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਐਨ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈਂਦਾ 1/n+1 ਡੀ ਡੀ ਐਕਸ ਆਫ ਐਕਸ ਪਾਵਰ n plus 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਪਾਵਰ n। ਨਾਓ ਮੈਂ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਡੀ ਡੀ ਐਕਸ ਆਫ ਐਕਸ ਪਾਵਰ n+1 ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਡੀ ਐਕਸ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਨੇ, ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। तो मेरे को जो पेंडिंग बचेगा वो है एक्स की पावर n+1 अपन n+1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n dx। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, एक्स पावर n dx इज इक्वल टू एक्स पावर n+1 अपन n+1। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ
ਆਨਸਰ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਸਟੇਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ, ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਇੱਧਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ x = n+1। ਆ ਸਾਰੀ ਵੈल्यू ਕੀ ਹੋ गई है आंसर चली गई आ वाली, ये क्या हो गया आंसर। तो बिल्कुल उल्ट प्रोसैस है ਇਹਦਾ। जो डेरिवेटिव वेले स्टेटमेंट सीगी वो हुण आंसर बन गई, इधर चली गई। और जो डेरिवेटिव वेले आंसर सी वो स्टेटमेंट च कन्वर्ट हो गई। इसलिए असीं कहते हैं कि डेरिवेटिव ते इंटीग्रेशन आपस ਵਿੱਚ उल्ट ने, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ एंटी डेरिवेटिव ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾइंड आउट करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ A to B। ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਫਿਗਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾइंड आउट ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ A to B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਏਰੀਆ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ x ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾइंड आउट करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ log x ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/x, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੀ ਫਾइंड आउट कर रहे हो डेरिवेटिव, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਆ log x ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜਿਟ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਟ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1/x dx ਦਾ log x। ਜਿਹੜਾ 1/x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੇਲੇ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਐਂਟੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਨਸਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿ x⁴n+1 upon n+1 ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ c ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ c ਆਲਵੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ आपने। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ x⁻10 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि 10x⁻9 ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x⁻10+5।
ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ, एक्स की पावर 10 माइनस मान लो 8 है, कोई एग्जाम्पल्स ने, आप जो भी मर्जी नंबर ले सकते हो। ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, एक्स की पावर 9 बराबर ही आएगा। एक होर ले लो, प्लस सी कर दो कोई एनी कॉन्स्टेंट, ਇਹਦਾ भी की होएगा ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 10x की पावर 9 ही है। सो डिफरेंट नंबर्स का असी डेरीवेटिव फाइंड किया, यह अलग नंबर है, अलग है, अलग है, यह अलग है, और डेरीवेटिव इन्होंने सारिਆਂ का एक ही आ रहा। पर हुण की है कि असी सोचते हैं जां इत्थे डिस्कस करके आए हैं कि डेरीवेटिव तो इंटीग्रेशन आपस में उल्ट ने, इसलिए जेकर मैं इन्हां सारिਆਂ का उल्ट करूँगा तो ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन लूँगा तो आंसर की बनूगा, यह चीज़। जे मैं फिर दूसरा फाइंड आउट करदा तो इसका आंसर की बनूगा, एक एक करके मैं ले रहा, यह 2 है, 3 है, 4 है। तो इसका आंसर जिमें दूसरे का लिया, आ पहला नंबर आ दूसरा, ਇਹਦਾ आंसर यह भी बन सकता। जो हम तीसरा नंबर लिया 10x की पावर 9 dx, उल्ट कर रहा मैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ आंसर से ਹੁਣ स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो x की पावर 10 माइनस 8 ये भी आंसर हो सकता। सिमिलरली जेकर लास्ट वाला लेंदे हैं तो ਇਹਦਾ भी आंसर यह आएगा। सो इसलिए इक्को ही स्टेटमेंट है सारी आ वाली, और ये आंसर सारे डिफरेंट है। सो आंसर डिफरेंट है, ये वार जो नंबर ऐड हो रहा है 5 है ਜਾਂ -8 है ਜਾਂ कोई एनी नंबर सी ऐड कर दिए, तो इस चीज़ ਨੂੰ कवर अप करने ਲਈ कि डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। सो इसलिए ਅਸੀਂ हमेशा ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे हैं। सो जिस तरह कि x की पावर 8 फाइंड आउट, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेशन करने लिए पावर फार्मूला लगा दोगे तो प्लस एक सी ऐड कर देना है। ठीक है, जिवें असी देखा है कि कोई ना कोई नंबर चाहे कॉन्स्टेंट कोई भी होवे, उसका स्टेटमेंट एक ही है जां इहदा डेरीवेटिव एक ही है। सो इसलिए एक नंबर ये रह जाता है और उसनों असी कवर अप करने लई इनू करना हुंदा है। इसलिए इनू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं कि इनडेफिनेट वैल्यूज़ ये दिन फाइंड आउट करती है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं करती। और सी जिहड़ा है इसकी की वैल्यू होएगी ये बारे सानू कोई पता नहीं है। जां अगे क्वेश्चन होंदे आ जदों असीं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं, उहदे विच कंडीशन क्वेश्चन ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, तो उदों असीं इहनूं फाइंड आउट करते हैं। वो कंडीशनस ये सी ਨੂੰ फाइंड आउट करने ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। बट हुण तुसीं जिहड़ा भी क्वेश्चन करो उहदे बाद दे विच सी ऐड कर देना। ये क्यों करते हैं, क्योंकि असीं देखिया है कि डेरीवेटिव है तो इंटीग्रेशन का आपसी एंटी रिलेशन है, और एंटी रिलेशन होने कारण जिहड़ियां भी असीं डेरीवेटिव फाइंड आउट कीते उहदे इक्को ही आंसर आ रहे हैं, और आंसर इक्को ही है। फिर वो स्टेटमेंट जो बनने हैं इक्को ही स्टेटमेंट के डिफरेंट आंसर आउणगे। डिफरेंट आंसर मैथ दे विच की है कि एक स्टेटमेंट के डिफरेंट आंसर आने ठीक नहीं है। इसलिए असी ये डिफरेंट आंसर ਵੱਖ-ਵੱਖ आंसरस ਨੂੰ कवर करने ਲਈ एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे हर आंसर तो बाद, ताकि वो कवर अप हो जाए। सो इसलिए तुसी हर आंसर तो बाद एक सी ऐड कर देना, इनू चुप करके ऐड कर देना विच, ताकि इनू असी कहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हुण जिवें डेरीवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर जां 1 का कह लो, डेरीवेटिव 1 की है, डेरीवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर 1 इज इक्वल टू साढ़े कोल है 0, और इंटीग्रेशन की होएगा 1 का। तुसी ये नहीं करोगे,
कॉन्सटेंट नंबर का इंटीग्रेशन लेना सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सटेंट नंबर इज इक्वल टू होएगा जिहदे रिस्पैक्ट कर रहे हो एक्स। ये किस तरह होंदा है कि असी की लवांगे कि डेरीवेटिव ऑफ 1 ले लो, जिस तरह इनू असी करके देखते हैं 1 dx इज इक्वल टू की है कि असी 0 की पावर x बार 0 लिख सकते हैं और इतने पावर फार्मूला लगा देंगे x की पावर 0 + 1 अपन 0 + 1। सो इसलिए ये किया गया x बार 1 अपन 1 यू गेट x। सो इसलिए कॉन्सटेंट नंबर कोई भी है वह इंटीग्रेशन किया जाएगा, वह कॉन्सटेंट नंबर द इंटीग्रेशन सी एक्स, जे सी है तो सी एक्स और ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 मल्टीप्लाई करके इन्हू फाइंड कर सकते हो, ਜਾਂ सिंगल बिल्कुल ओनली 1 है तो फिर उन्होंने इस तरह करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जेकर ये 1 के नाल डी वाई लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन की होगा वाई, क्योंकि हम वाई के रिस्पैक्ट कर रहे हो, इतने एक्स के रिस्पैक्ट कर रहे थे, तो यह याद रखना आपने। ठीक है, हुण कुछ क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट एक प्रॉपर्टी है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स। इस तरह जिन्ने मर्जी फंक्शन का एडिशन हो तो वह इंटीग्रेशन की होएगा, तो असीं सैपरेट कर लेना इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स, इस तरह प्लस सो ऑन अलग अलग इंटीग्रेशन तुसीं लै सकते हो। सो हुण जिवें क्वेश्चन है फर्स्ट फार्मूला किया और एक प्रॉपर्टी, तो ये असीं एक इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 9 प्लस एक्स पावर 10 प्लस 5 है मान लो, यदा इंटीग्रेशन की होएगा। अज आप बिल्कुल सिंपल करते हैं, फर्स्ट फार्मूले ने एक ही फार्मूला किया और वो ही क्वेश्चन करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार असीं की कर सकते हैं कि अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। सो जिन्ने इस दे पार्ट्स ने एडिशन सबट्रैक्शन दे विच, आपनों मैं डेरीवेटिव करन वेले भी कहा सी कि 4 फंडामेंटल ऑफ मैथमैटिक्स जिहड़ियां एडिशन सबट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लाई होंदियां उत्ते असीं काम करते हैं हर वेले। सो सिमिलरली ये भी यह जोड़ हो रहा सारिਆਂ ਦਾ, तो फिर सबट्रैक्शन भी जे होवे तो इत्थे प्लस माइनस आ सकती है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो अलग फार्मूले ने ते डिवीजन तो अलग ने, वो जो आउणगे करांगे। फस्ट ऑफ ऑल एडिशन सबट्रैक्शन ते आपां काम करते पे हैं। सो इसका की होएगा कि पहला फार्मूला जो किया वो करांगे, एक पावर बढ़ा देनी है 6 लगा दोगे और बाय 6 कर दोगे प्लस ए 10 आ जाएगी पावर और 10 प्लस 11 आ जाएगी और 11 ए 1 लगा के 5 का कॉन्सटेंट है और 1 जिमें लगाया असी इस तरह लगा के इनू कर सकते हो, तो यदा एक्स आ जाएगा और यू कैन राइट एक्स 6/6 प्लस एक्स पावर 10/10 प्लस एक्स पावर 11/11 प्लस 5x, तो लास्ट एक सी ऐड कर देना। ये नहीं है एक क्वेश्चन के नाल एक ही सी तुसीं ऐड कर देना, ये क्वेश्चन एको ही है और ये डिफरेंट पार्ट्स सीगे वो असीं अलग अलग करके इंटीग्रेशन लगाता। ये नहीं है कि यह इंटीग्रेशन अलग किया इत्थे प्लस सी अलग करिए, इत्थे अलग करिए, इत्थे अलग करिए, इधर अलग करिए, वो नहीं करना। तुसीं एक क्वेश्चन एको ही कर रहे हो और एक दे अलग अलग पार्ट्स और लास्ट ते जाके सी ऐड कर देना, इनू कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन असीं कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह होणगे, तो एक दो क्वेश्चन मैं तुहानूं होर दिना, तुसीं ये करने आ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दी पावर 3/2 प्लस -5/9 प्लस एक्स की पावर 10 है प्लस एक्स की पावर मान लो -6 है, इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है
ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਆਫ x ਦੀ ਪਾਵਰ 9 dx। ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 9/3 ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 dx। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 3/5 ਹੈ ਪਲੱਸ 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਹੈ dx। ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x dx इज इक्वल टू e दी पावर x प्लस c लगा ही लेना। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ a दी पावर x dx इज इक्वल टू log a दी पावर x अपन log a। तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x। ये करोगे तो नैक्सट ट्रिग्नोमैट्री के शुरू हो जाते हैं, बट सिंपल फार्मूले ये तुसी 3 कल याद करने हैं और ये क्वेश्चन करोगे 3 तो ये ही अज इन्ना ही इंटीग्रेशन करने की कोशिश करनी है। और ये कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, जो डेरीवेटिव आता है या डेरीवेटिव का बेसिक कंसैप्ट उत्थे यूज़ होना। हुण तुसी डायरैक्ट फार्मूले नूं याद करके सीधा भी अप्लाई कर सकते हो, तो जेकर माड़ी मोटी डेरीवेटिव कोई कमी पेशी है तो वो नाल कवर करते रहना। बट ये नहीं है कि जे डेरीवेटिव का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो ये होना ही नहीं, ये हो जाएगा। फार्मूले याद करने होंगे पर यह है आपस में उल्ट, जिमें उधर e दी पावर x का इंटीग्रेशन भी हुई है, डेरीवेटिव भी हुई है, और उधर log a का डेरीवेटिव होंगे, इधर वो एस log x का 1/x होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। तो अज इन्ना ही, थैंक यू वेरी मच।